ابھی وطن کی خاک کو ہماری قربانیوں کی ضرورت ہے۔ جہانگیر کسی بت کی طرح خاموشی سے اپنے بستر پر بیٹھا میری باتیں سنتا رہا، پھر اس کی آنکھوں کے گوشوں سے آنسوؤں کے 2 موتی لڑک کر اس کی گود میں گر گئے۔ تم اپنے حق میں اپنے دشمنوں سے زیادہ سفاک اور سرد مہر ہو۔ وہ اپنی آنکھیں بھیج کر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، میں کہہ رہا ہوں کہ امن و امان کے سائے میں کہیں سکھ اور گمنامی کی زندگی گزارنے کے بارے میں سوچو۔ لڑائیاں لڑنے والے دوسرے لوگ بھی موجود ہیں، سارا بوجھ بار تمہارے سر پر نہیں ہے، تم یہ کیوں نہیں سوچتے؟ اس کا آخری سوال ایک ہلکی سے بے ساختہ چیخ کی صورت میں اس کے حلق سے برآمد ہوا اور دیر تک کمرے کی بند فضا میں گونجتا رہا۔ چند لمحوں کے لیے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کمرے کے در و دیوار سے بھی وہ سوال ایک لاہوتی صدا بن کر ابل رہا ہو۔ یکا وہ سحر ٹوٹ گیا۔ سلمہ دروازہ کھول کر تیزی سے اندر داخل ہوئی اور وہ کرشماتی لمحے چشمے زدن میں گزر گئے۔ میں عالم خیال سے عالم ہست تبوت میں لوٹ آیا۔ اول خان ابھی اپنی گاڑی میں یہاں سے گزرا ہے۔ سلمہ نے اندر آتی کچھ سوچے سمجھے بغیر اپنی دھن میں کہنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا ہے کہ میں تمہیں اس کی واپسی کے بارے میں بتا دوں، تو اپنے دفتر میں تمہارا انتظار کرے گا۔ یہ یاد رکھنا کہ میں تمہارے کمرے سے چائے پیے بغیر جا رہا ہوں۔ میں نے اپنی کرسی چھوڑتے ہوئے سلمہ سے شکوہ کیا۔ ارے بیٹھ جاؤ۔ وہ دوڑ کر مجھ سے تقریباً لپٹ گئی اور مجھے کرسی میں گرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، تاؤ میں آ کر میں ہر بات بھول گئی تھی، تمہارے لیے ابھی چائے منگواتی ہوں۔ میں مذاق کر رہا تھا۔ ایسا ہی اصرار کر رہی ہو تو اپنی چائے اول خان کے دفتر میں بھجوا دینا، میں نے ہنس کر کہا۔ ہم خود اس کے مہمان ہیں، یہاں بھی تمہیں جو چائے ملتی ہے وہ اسی کی ہوتی ہے۔ سلمہ مجھے چھوڑ کر الگ ہٹ گئی۔ اس وقت اس کی ہر حرکت میں اپنائیت اور بے ساختگی تھی۔ میرے اندیشوں کے برعکس اس کے ذہن میں کسی فطور نے جنم نہیں لیا تھا۔ ذرا ایک بات کا خیال رکھنا۔ میرے چلتے چلتے جہانگیر نے ہانک لگائی اور میں ٹھٹک کر وہیں رک گیا۔ اب کیا یاد آ گیا تم کو؟ میں نے پلٹ کر پوچھا۔ جب تک ہم یہاں موج کر رہے ہیں ہمارے فلیٹ کو لاوارث نہ چھوڑ دینا۔ سلمہ کے کپڑوں کی الماری میں تمہارا خزانہ محفوظ ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم نے کہاں اتنا لمبا ہاتھ مارا تھا، وہ تھیلا خالی ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اب سارا نشہ ہرن ہو گیا۔ سلمہ نے خوش ہو کر مجھ سے کہا، دیکھو کیسی دور دور کی کوڑیاں لا رہے ہیں، تمہارے آنے سے ان پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ میں کئی بار کہہ چکی ہوں کہ چکر لگاتے رہا کرو، لیکن تمہیں وقت ہی نہیں ملتا۔ میرے نہ آنے پر یہ حال ہے کہ جہانگیر آخرکار اغوا ہو گیا۔ میں نے آمد و رفت کا سلسلہ شروع کر دیا تو وہاں ایسا دنگا فساد ہوگا کہ بس رہے نام اللہ کا۔ فلیٹ بل کی اپنی رقم کے بارے میں تم نے میری بات سن لی نا؟ جہانگیر نے مجھ سے تائید چاہی۔ تم بے فکر رہو، وہاں سے تنکا بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا۔ ویسے میری جیب خالی ہوتی جا رہی ہے، 2-4 دن میں مجھے کچھ ڈالروں کی ضرورت پڑے گی۔ اس حساب سے وہ رقم تمہارے عمر بھر کے گزارے کے لیے کافی ہوگی۔ جب ضرورت ہو سلمہ سے الماری کی چابی لے لینا، یہ سب اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتی ہے، ہر وقت اس کے ہزار بند سے بندھی رہتی ہے، جہانگیر نے بتایا۔ میں نے کنکیوں سے دیکھا کہ شرم اور خفت سے سلمہ کا گورا چٹا چہرہ لال بھبوکا ہو گیا۔ وہ جہانگیر کو غصیلی نظروں سے گھور رہی تھی۔ سلمہ کا وہ بے ساختہ رویہ میرے لیے حیران کن تھا۔ میرے لیے وہ کوئی نئی اطلاع نہیں تھی۔ سلمہ نے مجھے چابی کے ٹھکانے کے بارے میں بہت پہلے بتا دیا تھا۔ اس وقت حد ہو گئی تھی جب اس نے اپنی کسی ذہنی کج روی کی وجہ سے مجھے خود چابی حاصل کرنے پر اکسایا تھا اور میرے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ بہت محفوظ جگہ ہے، میں نے کہہ لگا کر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، وہاں تم دونوں کے سوا کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ تیزی سے دروازے سے باہر نکلتے ہوئے میں نے سنا کہ سلمہ بے شرمی کے بارے میں جہانگیر کو جھاڑ پلا رہی تھی۔ میں نے گاڑی کا انجن اسٹارٹ کیا اور تیزی کے ساتھ چند لمحوں میں اول خان کے دفتر کے سامنے پہنچ گیا۔ ویسے ہم روز ہی ملتے رہتے تھے، لیکن میرا اسٹیشن 4 کی طرف زیادہ آنا جانا نہیں تھا۔ اول خان ایک مہذب اور وفادار آدمی تھا۔ اس نے اپنے دفتر کے برآمدے سے نیچے آ کر میرے استقبال کی اور گرم جوشی سے میرا ہاتھ تھام کر واپس اپنے دفتر کی طرف لیا۔ کس کی تدفین میں گئے ہوئے تھے؟ میں نے انجان بن کر سرگوشیانہ لہجے میں سوال کیا۔ اول خان نے چونک کر اپنے دائیں بائیں دیکھا۔ اس کا اردلی دروازے کی چک اٹھانے کے لیے لپک کر آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نے متاسفانہ لہجے میں کہا، کرنل داور کی تدفین سے فارغ ہو کر واپس آ رہا ہوں۔ کرنل داور کا کردار میری تخلیق تھا۔ ایس ٹی ایف کے عام اہلکار اس کے وجود سے باخبر نہیں تھے۔ اس فورس کی ساخت کچھ ایسی پراسرار تھی کہ ہر شخص کا ہر بات سے باخبر ہونا ضروری نہیں تھا۔ اول خان نے بالا ہی بالا اس کردار کو زندہ رکھا ہوا تھا، جس سے ایس ٹی ایف کے چند بڑے اور گنے چنے افسر واقف تھے۔ اردلی اپنے افسر کی زبان سے کرنل داور کا نام سن کر بھی کچھ نہیں سمجھ سکتا تھا، لیکن اول خان اپنی احتیاط کی عادت سے مجبور تھا۔ مجھے تم سے ایک سنگین شکایت ہے۔ اس کے دفتر میں تخلیہ میسر آتے ہی میں نے کہا۔ وہ بیچارہ حیران ہو کر مستفسرانہ نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگا۔
तुमने जहांगीर के लिए अस्काच की बोतल का बंदोबस्त करके बहुत जुल्म किया। वो शराब के बगैर यहाँ 10-5 दिन गुजार लेता तो शायद मेरी तरह इस बुरी आदत को तर्क कर देता। बोतल मिलने के बाद ये इम्कान सिरे से खत्म हो गया है। तुम्हारी शिकायत बजा है, लेकिन उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। उसका सांस सीने में रुक रुक कर आ रहा था और आंखें फैल गई थी। उसने गिड़गिड़ाकर मुझसे इल्तिजा की थी और मेरा दिल पसीज गया। मैंने सुना था कि नशे के आदि को वक्त पर कोटा न मिले तो उसकी मौत भी वाक़ई हो सकती है। मैंने डर कर जल्दी से बोतल मंगवा दी। अव्वल खान ने अपनी सफाई पेश की। वो बहुत बड़ा अदाकार और मक्कार है। अपनी बीवी को ऐसे चकमे देता है कि वो परेशान हो जाती है। सीने में सांस फंसाने और आंखें फैलाने के लिए किसी महारत की जरूरत नहीं होती। उसने बहुत कामयाबी से तुम्हें उल्लू बना दिया। बात पूरी करते ही मैंने आंखें फैलाकर दोनों हाथ ठीले छोड़े और यूं रुक रुक कर सांसें लेने लगा जैसे चंद लम्हों में मेरा दम निकलने वाला हो। यह क्या कर रहे हो? अव्वल खान मुस्तरिब होकर बोला। उस बाजी की हरकतें दोहराने की जरूरत नहीं। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है। अगर वो उसकी अदाकारी थी तब भी वो बेहतरीन अदाकारी के इनाम का मुस्तहिक था। वो उसे बोतल की सूरत में मिल गया। अब उसे भूल जाओ। मैंने इस पर तुम्हारा भरम रखा हुआ था। मैं तुम्हें गाहे गाहे उसकी हरकतों के बारे में बताता रहा हूँ। तुम अपना दिल सख्त कर लेते तो ये उससे शराब छुड़वाने का बेहतरीन मौका था, जो तुम्हारी रहम दिली की वजह से ज़ाया हो गया। अब इस लकीर को ज्यादा ना पीटो। वो मुस्कुरा कर बोला। तीर कमान से निकल चुका है, उसे वापस लाना मुमकिन नहीं है। कसूर तुम्हारा भी है। तुमने मुझे कभी ये बात नहीं बताई कि जहांगीर मकर भी कर सकता है। मकारी के लिए जहानत की जरूरत होती है। मैं उसे निरा गाउदी समझता था। इस गुमान में ना रहना, वह बहुत काया है। मैंने शी में पसे पर्दा रहकर उसे अपना बास बनाया हुआ था। वो बहुत तहक्कुम और एतमाद के साथ मुझसे काम लेता था। तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक अस्पताल में तजहीज़ो तकफीन के बाद कर्नल दावर को मेवाशाह कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया है। इस जनाजे में मेरी फोर्स के 10 आदमी शामिल थे। उसने गुफ्तगू का मौजू तब्दील करके मुझे अपनी कारगुजारी से आगाह किया। वो लाश किस बदनसीब की थी? मैंने सिगरेट सुलगा कर पूछा। बदनसीब नहीं, उसे खुश नसीब कहो। वो लियारी में मूसा लैन के इलाके में कुप्पी की जहरीली शराब पीकर मरा था। उसे बहुत इज्जत और एहतराम के साथ दफनाया गया है। अस्पताल में पड़ा रहता तो न जाने कब उसे दफन करने की बारी आती। हर लवारिस लाश को शनाख्त के लिए एक मुकर्रम मुद्दत तक मुर्दाखाने में रखना जरूरी होता है। इसके बाद इसे ईदी वालों के हवाले कर दिया जाता है। देखना होगा कि यह खबर हमारे हारीफों तक कब पहुंचती है। मैंने पुरख्याल लहजे में कहा। यह पूरे प्लान का मरकजी नुक्ता है। खबर लीक करा दी गई है। अव्वल खान ने पहलू बदलते हुए बताया। STF का मुल्क में कोई कानूनी वजूद नहीं है। इसका नाम किसी खबर में नहीं आ सकता, मगर सुबह के कम अज कम 2 अखबारात में रिटायर्ड कर्नल दावर की खुदकुशी की खबर नुमाया तौर पर शाया होगी। मैंने कोशिश की है कि अखबारात आने से पहले ही यह खबर फैल जाए। चंद सानियों के सकूत के बाद अव्वल खान ने अपनी बात आगे बढ़ाई। कर्नल दावर के साथ मुश्तरका इजलासों में शिरकत करने वाले अफसरों के लिए यह खबर अलमनाक होने के साथ सनसनीखेज भी साबित होगी। हर ज़हन में सवाल उठेगा कि इस रुतबे के एक मुअज़्ज़ज़ आदमी की खुदकुशी के क्या असबाब हो सकते हैं। होते होते ये बात अमरीकी कैंप तक पहुंच जाएगी और हमारा मकसद हल हो जाएगा। रात गुजर जाएगी और सुबह के अखबारात बाजार में आ जाएंगे। मैंने कहा, मेरा अंदाजा है कि यह रात यूं ही नहीं गुजरेगी। मैंने लाश का बंदोबस्त होते ही अपने एक खास अखबारी रिपोर्टर को टिप दे दी थी। अब तक वो कई दरवाजों पर दस्तक दे चुका होगा। ऐसी खबरें जंगल की आग की तरह फैलती हैं, फिर इनका रद्द-ए-अमल आना शुरू हो जाता है। तुम इजलासों की शुरका की बात कर रहे हो तो STF का नाम भी जरूर सामने आएगा। मैंने कभी अंदेशे का इजहार किया। बाद सीनियर सहाफियों के लिए STF का नाम नया नहीं। जब अमेरिका वाले हर बात से बाखबर हो सकते हैं तो खबरों की तलाश में सरगर्दा रहने वाले मकामी सहाफी कैसे बेखबर रह सकते हैं? वो ये भी जानते होंगे कि STF एक रियासती राज है जिसे कानून से बालातर रखकर भरपूर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। किसी ने इन चिंगारियों को खरीदने की कोशिश की तो उसका दामन जल उठेगा। कर्नल दावर की खुदकुशी की खबर किस इदारे ने जारी की है? मैंने सवाल किया। मेरा सवाल सुनकर अव्वल खान मुस्कुरा दिया। कर्नल दावर STF के लिए काम कर रहा था। कानूनी तौर पर यह फोर्स बेवजूद है। खबर कौन जारी करता? यह काम बहुत सोच समझ कर किया गया है। किसी ने कोई खबर जारी नहीं की, बल्कि यूं जाहिर किया गया है जैसे इस वाक़े को छुपाने की कोशिश की जा रही हो। तुमने गौर नहीं किया कि मेरे खबर लीक होने का जिक्र किया था। अखबारों में जो कुछ आएगा वो अखबारों के अपने जराए से आएगा। एक खामोश और पुरस्रार जनाजा किसी भी रिपोर्टर की तवज्जो का मरकज बन सकता है। वेरी गुड, मैंने बेसाख्ता कहा। तुमने इस मामले के हर नशीबो फराज पर नजर रखी है। अब मैं भी तुम्हारा हम ख्याल हूं कि यह रात खाली नहीं जाएगी। अभी सिर्फ 6 बजे हैं। अव्वल खान ने अपनी रिस्ट वॉच पर नजर डालकर कहा, आने वाली रात बहुत लंबी है। मेरी छठी हिस्स कह रही है कि कर्नल दावर की खुदकुशी कोई ना कोई गुल जरूर खिलाएगी। क्या होगा, कैसे होगा, पहल कहां से होगी, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।
मैंने अव्वल खान की बात का कोई जवाब नहीं दिया। मेरे जहन में अज खुद टाम का ख्याल उभर आया था। पिछली रात के आखिरी पहर में उससे होने वाली बातों की रोशनी में कर्नल दावर की खुदकुशी की खबर उसके लिए किसी एटमी धमाके से कम नहीं होती। अर्दिल चाय की ट्रे लाया तो अव्वल खान के लिए इंटरकॉम पर एक कॉल आ गई। वो चंद सानियों तक हूं हाँ करके दूसरी जानब वाले की बातें सुनता रहा, फिर मुझे चाय पीने का मशवरा देकर चंद मिनट में वापसी के वादे पर अपने दफ्तर से निकल गया। दफ्तर में तन्हाई मुयस्सर आती मेरा जहन गैर इरादी तौर पर सलमा की तरफ फिसल गया। मेरी वापसी के आखिरी लम्हात में उसका रवैया मेरे लिए बहुत हैरान कुन रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि तन्हाई में मुझसे बेहिजाबी से बातें करने वाली यकायक इतनी शर्मीली हो सकती है कि अपने शौहर के चंद अल्फाज पर शर्म से गुलाबी हो जाए। वो किसी बिना पर मुझसे बदजन हो गई थी या फिर उसे ध्यान आ गया था कि वो जिस रास्ते पर चल रही थी वो शौहर से खुली बेवफाई की तरफ जाता था। माजी में मैंने सलमा की किसी पेश कदमी की हौसला अफजाई नहीं की थी। लग़ज़िशों के बहुत से लम्हात मैंने कमाल ज़ब्त से काम लेते हुए महज हंस बोल कर गुजार दिए थे। वो मेरे एक अजीज तरीन दोस्त की बीवी थी। उसके हवाले से मेरे जहन के दूर दराज कोशों में भी गुनाह का कोई तस्वुर मौजूद नहीं था। फिर भी मुझे उसकी बेतकल्लुफियाँ अच्छी लगती थी। उसने एकाएक तकल्लुफ का बिलवास्ता इजहार करके मुझे बेनाम से खलिश में मुब्तला कर दिया था। शायद इसके बदले हुए तेवरों से मेरे मर्दाना पंदार को कोई ठेस पहुंची थी। अव्वल खान अपने वादे के मुताबिक बहुत जल्द लौट आया और मेरी सोच की वो लड़ी वहीं बिखर गई। चाय नोशी के दौरान में अव्वल खान के लिए फ़ोन आते रहे। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला बार बार टूटता और जुड़ता रहा। अव्वल खान ने आफादगियत के पेश नज़र अपनी मेज़ पर स्पीकर फ़ोन लगवा लिया था। कागजात और फाइलों को निपटाते हुए रिसीवर उठाने के बजाय स्पीकर फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था। 6:30 बजे अव्वल खान अखराजात का एक गोशवारा देख रहा था कि फ़ोन की घंटी बजने लगी। उस हमने सामने फैले हुए कागजों से नजरें हटाए बगैर बटन दबाकर स्पीकर फ़ोन ऑन कर दिया। हाय, मैं अव्वल खान से बात करना चाहता हूँ। वो जुमला खालिस अमरीकी लबो लहजे में अदा किया गया था। वो आवाज़ पहचानते ही मेरा दिल उछल कर खल्क में आ गया। आवाज़ अव्वल खान के लिए भी अजनबी नहीं थी। उसने गोशवारे को यूं छोड़ा जैसे उसे इन कागजों पर बिच्छू नजर आ गया हो। उसने मेरी तरफ देखा तो उसकी निगाहें बलौर की गोलियों की तरह चमक रही थी। चारा कामयाब रहा था। शिकार ने इस पर मुंह मार दिया था। तुम कौन बोल रहे हो? अव्वल खान ने नहायत पुरस्कून आवाज में सवाल किया। टॉम पैट्रिक, फराम CIA। मुझे अव्वल खान से जरूरी बात करनी है। अपना तारुफ कराते हुए उसकी आवाज में रौनक आ गई थी। वो अव्वल खान की आवाज नहीं पहचान सका। हेलो टॉम, मैं अव्वल खान ही बोल रहा हूँ, उसने धीमी मगर बोझल आवाज में कहा। तुमने मुझे कैसे फोन कर लिया? मेरा ख्याल है कि यह राब्ता प्रोटोकॉल के खिलाफ है। इन रस्मी बातों को छोड़ो। टॉम की आवाज दोस्ताना हो गई। मैं इनकी परवाह नहीं करता। यह बताओ कि आज की क्या खबरें हैं? किसी खबर का ना होना सबसे अच्छी खबर कहलाता है। अव्वल खान ने अंग्रेजी मुहावरा दोहरा दिया। इस वक्त मुझे उसके सबर और सुकून पर रश्क आ रहा था। वो मेरे बदतरीन हरीफ को बहुत खूबसूरती से हैंडल कर रहा था। तुम बेसाख्त लोग हो। मैंने प्रोटोकॉल तोड़कर कुछ दोस्ताना तबादला ख्याल के लिए तुम्हें फ़ोन किया है। मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम मुझसे बात करते हुए हिचकिचा रहे हो। मेरी अंग्रेजी कमज़ोर है। अपनी मादरी ज़ुबान में मैं रवानी से बात कर सकता हूँ। इस वक्त तुम किस किस्म के तबादला ख्याल की ज़रूरत महसूस कर रहे हो? कर्नल दावर तो बहुत शुस्ता और रवां अंग्रेजी बोलता है। टॉम ने अव्वल खान के सवाल को नज़रअंदाज करके कर्नल दावर के जिक्र का मौका निकाल लिया। अव्वल खान एक खुनकारा भर कर रह गया। कर्नल दावर के जिक्र पर तुम चुप क्यों हो गए? कहने के लिए कुछ ना हो तो चुप रहना बेहतर होता है। तुम अपने काम की बात करो। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इस वक्त कर्नल दावर कहाँ है? टॉम को बराह रास्त वो तजस्सुस समेत सवाल करना पड़ गया। हमसे अच्छी जगह पर है। जवाब मुबहम लेकिन अव्वल खान के अकीदे के ऐन मुताबिक था। इसकी सर्द और सपाट आवाज सुनकर मुझे मान लेना पड़ा कि वक्त और जरूरत के मुताबिक वो अपनी आवाज पर काबू रखने पर कादिर था। शहर में खबर गर्म है कि उसने खुदकुशी कर ली है। अव्वल खान ने आखिरकार उसे खुलकर सवाल करने पर मजबूर कर दिया। क्या यह खबर दुरुस्त है? ओह! अव्वल खान के होंठों से एक बेसाख्ता सी आवाज बरामद हुई। मुझे अफसोस है कि हमारी तमाम तरकोशियों के बावजूद यह खबर लीक हो गई। मैंने हाथ फिजा में बुलंद करके अव्वल खान की हौसला अफजाई की। वो बहुत कामयाबी के साथ बात आगे बढ़ा रहा था। अखबारी रिपोर्टर जोंकों से कम नहीं होते। पाताल से भी खबरें निकाल लाते हैं। मैंने सुना है कि किसी रिपोर्टर ने इस अफवाह की तस्दीक के लिए IG से राब्ता किया था। वो वाकई अब इस दुनिया में नहीं है। वो बहुत अच्छा और ज़हीन साथी था। इसके लिए मेरा दिल उदास है। अव्वल खान ने निकट से भराई हुई आवाज में कहा। मैं इसकी नेक रूह की मगफिरत के लिए दुआ को हूँ, लेकिन उसने अचानक खुदकुशी क्यों कर ली? इन बातों को ना करे दो तो बेहतर है। उसकी मौत में तुम बराबर के शरीक हो। मैं? टॉम की पाटदार आवाज उभरी। तुमने मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा दिया? STF का बहुत मजबूत नेटवर्क है।
बातें खुलना शुरू हो गई थीं। अव्वल खान ने किसी बहस का आगाज करने के बजाय कोई कहानी सोच ली थी। मैं हमतन गोश हो गया। मैं तुम लोगों का दुश्मन नहीं, दोस्त हूँ। वो वाकई ज़हीन अफसर था। मुझे उसके अंजाम पर दुख हुआ है। मैं उसकी गलतियों के बारे में जानना चाह रहा हूँ। डैनी के मामले में वो फोर्स की पॉलिसी से इन्हिराफ करके अपने राह पर चल पड़ा था। अव्वल खान की उस तमहीद ने मेरा दिल खुश कर दिया। वो कह रहा था, मुल्क और कौम से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सब अमन व अमान के अलमबरदार और एक दूसरे के दस्तों बाजू हैं। इस जज्बे के तहत मैंने किसी उज़र के बगैर तुम्हारी सुनाई हुई खबर की तस्दीक की है। मुझे उम्मीद है कि तुम भी इसी रवारवी से काम लोगे। हमें मुसलसल खबरें मिल रही थीं कि वो तुम लोगों से करीबी राब्ते में है। उसने डैनी की नकलो हरकत का मुकम्मल ब्लैकआउट कर दिया था। अपनी मालूमात अपनी ज़ात तक महदूद कर ली थी। दफ्तर में कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं कर रहा था। शुबा किया जा रहा था कि बड़े इनाम के लालच में वो तुम लोगों से डैनी का सौदा करने के चक्कर में पड़ गया है। अपने साथियों के रवैये से उसे शुबा हो गया था कि उसकी खुफिया निगरानी हो रही है और उसकी जाती सरगर्मियों का बगौर जायजा लिया जा रहा है। इन बातों ने उसे परेशान कर दिया था। वो कई दिनों से खामोश और फिक्रमंद रहने लगा था। आज उसने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। अव्वल खान बहुत तसलसल और रवानी के साथ बोलता चला गया। उसकी वो सलाहियत पहली मर्तबा मेरे मुशाहिदे में आई थी। खुदकुशी के वक्त को तुम कोई अहमियत देते हो? टॉम ने अव्वल खान के इल्जामात की तरदीद किए बगैर पूछा। मजीद किसी सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि कर्नल दावर की खुफिया सरगर्मियों की रिपोर्टें किस हद तक दुरुस्त थीं? अव्वल खान ने बावकार अंदाज अपनाया हुआ था। मैं किसी बात की तरदीद नहीं करूंगा। कदर सकूत के बाद टॉम का जवाब आया। तुम्हें बखूबी अंदाजा होना चाहिए कि डैनी ने हमारे मफादात को कितना नुकसान पहुंचाया है। वो खूनी दरिंदा है। इंसाफ का तकाजा है कि हर कीमत पर उसे पकड़कर करार वाकई सजा दी जाए। उसकी जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी मेरा और मेरे पेश रुओं का मिशन है। वो खूनी दहशतगर्द अमेरिकी हुकूमत के लिए एक चैलेंज और अना का मसला बन चुका है, लेकिन किसी तरह हाथ नहीं आ रहा। सुनने में आया कि बाज़ पाकिस्तानी एजेंसियां उसकी पुष्ट पनाह हैं। कर्नल दावर उसकी राह पर लग गया था। उसे इनाम की हवस थी। हमें डैनी का सर दरकार था। यह हकीकत है कि हमारे दरमियान बहुत संजीदा डील चल रही थी। मेरी जगह तुम होते तो तुम भी इस मौका को कभी हाथ से न जाने देते। सब कुछ ठीक ठाक था, फिर कर्नल ने क्यों खुदकुशी कर ली? कोई नहीं जानता कि कर्नल के दिल में क्या था। अव्वल खान ने कहना शुरू किया। वो कई दिनों से परेशान था, लेकिन कल सुबह से वो अजीब कर्ब और इस्तराब के आलम में था। शायद कोई नई बात रूनुमा हुई थी जिसने उसे हिला कर रख दिया था। वक्त गुजरने के साथ उसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। उसे मालूम था कि वो STF का एतमाद खोकर कड़ी निगरानी में आ चुका है। हो सकता है कि किसी वजह से उसे तुम्हारी नीयत पर शुबा हो गया हो। डैनी को अपनी तहवील में लेकर तुम इनाम की रकम देने से इनकार कर दी थी तो वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। तुम उसे ब्लैकमेल कर सकते थे। तुमने कहा कि कल सुबह से वो इस्तराबी कैफियत से गुजर रहा था। टॉम ने तायद चाही। वो कर्नल दावर की हराम मौत का सेहरा अपने सर लेने की कोशिश कर रहा था। मेरा यही मुशाहिदा है, अव्वल खान ने गंभीर लहजे में कहा। रात का एक कुछ न कुछ हुआ था जिसने कर्नल दावर के दिलो दिमाग को ज़ेरो ज़बर कर दिया। शायद वो अपनी फोर्स से गद्दारी कर रहा था। उसके सिले में तुमसे कुछ पाने की उम्मीद खत्म हो गई तो उसे अपना मुस्तकबिल तारीख नजर आने लगा। हर सीक्रेट सर्विस की तरह STF में भी गद्दारी की एक ही सजा होती है। कर्नल दावर किसी जानलेवा हादसे में नहीं मरना चाहता था। उसने अपने हाथों से अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया। वो एक ज़हीन और मेहनती लेकिन बहके हुए अफसर का अफसोसनाक अंजाम था। इसके कमांडिंग ऑफिसर की हैसियत से मैं सारी रिपोर्टों से वाकिफ हूँ, फिर भी मुझे कर्नल की मौत का कलक है। मैंने अपना एक बेहतरीन साथी खो दिया। उसकी मौत में तुम बराबर के शरीक हो। शायद तुम ठीक कह रहे हो। टॉम की आवाज़ में अजीब सी वहशाना तमानियत उभर आई। गहरी हार्ट के बाद मैं महसूस कर रहा था कि कर्नल ने हमारी कमजोरी को भांप लिया है। वो डैनी के नाम पर हमारे साथ खेल रहा था। परसों रात मैंने उसे अपनी बेलाग सोच से आगाह कर दिया था। हो सकता है कि उसी के बाद उसका दिमाग उलट गया हो और उसने खुदकुशी का मुसम्मम इरादा कर लिया हो। तुमने अभी तक इस तबादला ख्याल की इब्तिदा नहीं की जिसका शुरू में हवाला दिया था। अव्वल खान ने सपाट अंदाज में उसे याद दिलाया। वो यही सब बातें थीं। मैं तुमसे कर्नल की खुदकुशी की तस्दीक करना चाह रहा था। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि तुमने हर बात साफ कर दी। तुम बहुत खरे और अच्छे इंसान हो। मुझे हमेशा अपना मुखलिस दोस्त पाओगे। मैं रस्मी मरासम से बढ़कर तुम्हें खुश आमदीद कहूँगा। कर्नल दावर का किस्सा निमट गया था। वो बहुत होशियारी के साथ अव्वल खान को दाना डालने की कोशिश कर रहा था। उसका शुक्रिया अदा करते हुए अव्वल खान के होठों पर जहरीली मुस्कुराहट तैर रही थी। आज अदाकारों और सदाकारों का दिन है। फोन बंद होते उसने कहा, पहले जहांगीर ने तुमको अपनी अदाकारी के जौहर दिखाकर मौम किया। अब तुमने अपनी सदाकारी से टॉम को चित कर दिया। इतनी उम्दा और मरबूत कहानी घड़ना मेरे बस से बाहर था, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं हुआ। अव्वल खान ने मायूसी से कहा, बातों ही बातों में मामला टल गया।
وہ اپنے گھر خوش ہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا تم کسی چاند ماری کی آس لگائے بیٹھے تھے؟ میں نے ہنس کر پوچھا۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کرنل داور کی تدفین کی ہے تو دشمن کا بھی ایک آدھ آدمی گرنا چاہیے۔ اس نے اپنے دل کی بات کہہ ڈالی۔